So, dear students, our today's topic is outbidding devices. And what do you mean by outbidding devices? You have studied about two types of pollination, like self pollination and the cross pollination. And also in the chapter of where you have studied about the crop breeding, in that chapter also you have studied about a term which is called inbreeding depression. So, if you recall that, what do you mean by inbreeding depression? Inbreeding depression means if we cross the same plant again and again, it will lost its vigor. है ना, उसके अंदर जो सीड्स या जो नेक्स्ट प्लांट आते हैं दे आर नॉट सो रोबस्ट, दे आर नॉट सो गुड इन क्वालिटी, फ्रूट्स इन अच्छे नहीं होते क्वालिटी में. तो दैट मीन्स यू कैन से दैट कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो हाउ टू ब्रेक दिस सेल्फ पॉलिनेशन थिंग, है ना, उसको हम ब्रेक करेंगे तभी तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम ख़त्म कर पाएंगे. तो फ्लावर्स जो हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, they also have certain kinds of mechanism to prevent this self pollination, and they encourage the cross pollination in nature itself. You do not have to do anything. Okay, so there are some strategies, or you can say some mechanism which plants acquire in nature so that it can prevent the self pollination and promotes the cross pollination. So it is given in your book here. If I mark it, these are the points. I have given them number, but I am going to explain you here one by one so that you can understand about it. And when you read this chapter or read this page, you just get all these things yourself. So first point is when pollen release and stigma receptivity is not synchronized. This is a mechanism. What do you understand by this? दैट मीन्स कि समटाइम सपोज फ्लावर में मेल फ्लावर प्लांट भी है और फीमेल भी. सपोज फ्लावर इज़ बाई सेक्शुअल फ्लावर, एंड इन दैट फ्लावर ऑल्सो स्टिग्मा सपोज लेट मेच्योर हुआ या फिर स्टेमेन लेट मेच्योर हुआ, तो देयर विल बी नो सिंक्रोनाइजेशन बिकॉज फॉर फर्टिलाइजेशन इट नीड्स मेचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ द गैमेट्स. बट सपोज इमेजिन लाइक case like this I am telling to you that stigma mature first and anther mature later on. तो अगर pollen grain suppose it reaches or landed to the stigma, तो देयर विल बी नो यूज़ क्योंकि ये इमेच्योर है. तो देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन. इन द सेम टाइम आप कह सकते हो कि सपोज इफ पॉलन ग्रेन्स आर मेच्योर बट स्टिग्मा इज़ नॉट मेच्योर, देन देयर इज़ ऑल्सो नो यूज़ ऑफ रीचिंग द पॉलन ग्रेन्स ऑन टू द स्टिग्मा बिकॉज इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ पॉलिनेटिंग और फर्टिलाइजेशन. तो दिस मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन नेचर इट सेल्फ, है ना, उसमें कुछ करना नहीं आपको. कई बार कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल प्लांट्स पार्ट पहले मेच्योर होते हैं, किसी में फीमेल प्लांट्स पहले मेच्योर होते हैं. दैट मीन्स दे आर नॉट मेच्योर साइमल्टेनियसली और सेम टाइम. तो ये अपने आप ही उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा. फिर वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाकर शेड होगा जो पॉलन ग्रेन है ना, क्योंकि ये तो मेच्योर नहीं है, तो किसी और प्लांट के ऊपर जाएगा वो. So that means automatically they encourage the cross pollination. The second point is anther and stigma placed on different position. Sometimes also happens like this. Suppose I am drawing it here for you. Suppose this is the flower and this is the anther. Suppose this is the anther and this is the stigma. ठीक है, ये this is the stigma thing. तो now what will happen? Suppose यहाँ पर pollen grain mature हुए, pollen grain matures here. It can't reach up to this place. Sometimes it will become very difficult for the pollen grains to reach on the stigma of the same plant if it is on the very much height in comparison to the pollen grains. Or sometimes it also occurs, you have seen in various plant, if you have observed it, that suppose it is a flower and in this flower these are the stamens. These stamens are inside the flower and stigma is protruded outside the flower. Now imagine, suppose pollen grains are mature and they shed inside the flower only. They have not that capacity to reach on the stigma. तो वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है. तो that means this is also a mechanism to prevent the self pollination. Is that anthers and stigma placed on the different position. I am drawing the anthers inside the flower and stigma outside the flower. Sometimes position may be reverse also. It is not like that. Sometimes ये भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है जो मैंने आप ड्रॉ करके आपको बताया. सपोज दिस इज़ द फ्लावर and in this flower suppose this is the stigma style ovary, that means female part of flower, and these are the stamens. They are exerted in position, they are outside the flower,
है ना। तो अब ये भी अंदर आ पाने में इनके लिए कई बारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मैकेनिज्म। अगेन इज़ द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स that sometimes self pollination, that means pollen grains which is formed in the same flower, become sterile for the stigma of the same flower. Suppose this is the flower, I am drawing it, and these are suppose stamens, and this is stigma, style and everything, female part of the flower. So what happens is that pollen grains of this anther, when shed onto the stigma of the same flower, it become sterile. That means it become useless for the it plant. तो बने भी इस पर शेड भी हुए, बट ये फर्टिलाइज कर पाने और पॉलिन ग्रेन को पॉलिनेट कर पाने में, सॉरी स्टिग्मा को पॉलिनेट कर पाने में इनकेपेबल हैं। तो ये किसी दूसरे प्लांट पर फिर जा कर के उसको पॉलिनेट करेंगे। तो देयर आर some plants in the plant kingdom that they promote self incompatibility. That means they prevent self pollination. They do not like the pollen of their same flower. वो उनको वेलकम नहीं करते, तो अपने आप ही उनके अंदर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज production of unisexual flower. As we all know that unisexual flower means male and female flower are found separately, so that their sexual organs are also present on the separate part. तो in that case also in this case जो सेल पॉलिनेशन है it is not going to be done, और फिर यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल हो पाता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर दैट मीन्स मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन टू द सेम प्लांट, मोस्ट ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। अब एग्जाम्पल भी हैं आपको दिए हुए, कैस्टर एंड मेज है फॉर एग्जाम्पल है। तो दे ऑल्सो प्रिवेंट ऑटोगैमी बट दे डू नॉट प्रिवेंट जिटेनोगैमी। दो तरह की चीज़ें आपने पढ़ी थी, जिटेनोगैमी एंड ऑटोगैमी पढ़ी थी। तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट केस है ना इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर वेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट sometimes on the same plant or sometimes on the different plant. But in case of castor and maize which are monoecious plant, they prevent autogamy. That means autogamy नहीं होती, ठीक है, लेकिन बट नॉट जिटेनोगैमी, वो जिटेनोगैमी को भी नहीं प्रिवेंट करते। जिटेनोगैमी इनमें पॉसिबल हो सकती है। जिटेनोगैमी इफ़ यू रिमेंबर क्या होता था जिटेनोगैमी, उसमें होता था ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, ये काम तो हो सकता है। एंड सेवरल स्पीशीज़ हैं लाइक पपाया है, जिसमें आपने अगर पपाया का प्लांट देखा हो तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। वो एक ही प्लांट पर नहीं होते हैं, अलग अलग प्लांट्स के ऊपर होते हैं। तो दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एज वेल एज जिटेनोगैमी, क्योंकि प्लांट ही डिफरेंट हो गए ना इस वजह से। तो दिस इज़ द all about outbreeding devices, and this topic is very important. Here are some examples given. तो ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। These are the points which you have to remember because most of the time this question comes into your board examination. And the next topic is given that pollen pistil interaction, नीचे देखो दिया हुआ है यहाँ पे। What do you mean by this pollen pistil interaction? Pollen pistil interaction means कि if suppose pollination occurs, तो इट इज़ नॉट अ गारंटी दैट अगर पॉलिनेशन हो गया तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, बिकॉज समटाइम्स पॉलन ग्रेन्स आर ऑफ नॉट राइट काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन्स, दैट मीन्स दे आर नॉट कंपैटिबल। और समटाइम्स जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है दैट मीन्स स्टिग्मा, इट इज़ ऑल्सो नॉट रिसेप्टिव फॉर दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना। इट डज़ नॉट लाइक कि ये वाला पॉलन ग्रेन मेरे को नहीं चाहिए, तो वो उसको वेलकम नहीं करते, वो उसको अपने अंदर नहीं लेते, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तो डिटेल में नहीं है आपके, बट इन हायर क्लासेस यू विल गेट अ चांस टू स्टडी अबाउट इट। कि सपोज़ यहाँ पर कोई पॉलन ग्रेन शेड हुआ, तो पॉलन ग्रेन शेड हुआ तो आपको पता है ड्राई कंडीशन में है ये, तो देयर आर सर्टेन केमिकल्स रिलीज्ड बाय द स्टिग्मा, है ना। स्टिग्मा कुछ केमिकल्स रिलीज करता है एंड पॉलन सरफेस भी कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। इफ़ दे आर कंपैटिबल ओनली देन ये जो पॉलन ग्रेन है ये एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को, स्वेल अप होगा एंड इसकी जो आउटर वॉल है ये रेप्चर हो जाएगी एंड ये इंटाइन स्मूथ एंटाइन आ जाएगी और इसमें से पॉलन ग्रो ट्यूब स्टार्ट्स डेवलपिंग। दिस इज़ काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म अकर्स। तो इट डजंट मीन दैट if pollen grain shed onto the stigma, so pollination is 100% sure. It is not like that. It may be possible that that stigma rejects the pollen grains, or sometimes pollen do not like to come onto this stigma. So it is always
अ थिंग ऑफ कंपैटिबिलिटी, है ना, राइट टाइप ऑफ, कंपैटिबल टाइप ऑफ आप कह सकते हो पॉलन ग्रेन्स। तो एक्सेप्टेंस जो है वो बोथ साइड से होता है कि इफ़ दे लाइक और इफ़ दे आर कंपैटिबल ओनली देन पॉलिनेशन can be possible and fertilization occurs. And now come to the next topic, and which is about the fertilization process, क्योंकि after this we have to see the process of fertilization. Here I am just drawing some diagram for you, and in book also they have given like this one, और ये in large form में भी है यहाँ पे this one. So here it is shown that how fertilization occurs once pollen grain landed onto the stigma. These are the pollen grains, germinating pollen grains. They all are compatible. So stigma is ready to fertilize, ready to receive, and fertilization process is going to be happen. तो what will happen in it? अब ये यहाँ पर एब्जॉर्ब करेंगे pollen grains, some material यहाँ पर liquid material होता है, and they swell up and exine burst and entine erupts into form of the pollen tube. Now you can see that this is the entine which is erupting in the form of a pollen tube, and the nucleus which is present into the pollen grains, they also migrate in this pollen tube. इस pollen tube के अंदर ये जो गैमिट्स हैं, सॉरी जो न्यूक्लियस है वो भी इसके अंदर क्या करेगा, वो इसके अंदर भी मूव करेगा. एंड यू हैव स्टडीड दैट बेसिकली pollen grains आर शेड इनटू द टू न्यूक्लिएटेड कंडीशन, टू सेल्ड कंडीशन आप कह सकते हो. वन इज़ अ जनरेटिव न्यूक्लियस, अनदर इज़ द कौन सा न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस. याद है ना आपको, वही वाली चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ कि इन टू celled stage the pollen grains come and fall onto the stigma, and through the pollen tube these are just migrating inside the ovary. You can say ये ovary के अंदर ये आ रहे हैं two male gametes. तो sometimes there are one male gamete and sometimes in the two male gametes is the possible, and it depends upon the species of the plant in which you are talking about. And once they reach into the ovary, they enters into the ovule through the micropylar end. Now you know very well what are the micropylar end. So micropylar end and enters one of the synergids. Synergids you also very well know what are the synergids. Here it is shown also. Synergids are the nearby cells in between ओव्यूल सिचुएटेड और ओवाई सिचुएटेड. तो सबसे पहले वो कहाँ इंटर करते हैं, माइक्रो जो पाइल ट्यूब आ रही है, एक सिनर्जिड्स में, किसी भी वन ऑफ द, ये दो तीन बने ना दो साइड में सिनर्जिड्स हैं, तो वन ऑफ द सिनर्जिड्स में एंटर करती है थ्रू द फिलीफॉर्म ऑपरेटस. ये भी मैंने आपको बताया, सपोज दिस इज सिनर्जिड सेल्स, तो दीज आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द फिलीफॉर्म ऑपरेटस. तो ये एंटर करती है फिलीफॉर्म ऑपरेटस के अंदर पॉलन ट्यूब, बिकॉज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटस इज टू गाइड द पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब को गाइड करना कि उसने कहाँ जाना है. तो filiform apparatus which is present into the micropylar part of the synergids guide the pollen tube that where it has to go, and all these events take place inside the ovary as you can see, है ना. एंड जब pollen pistil का इंट्रैक्शन हो जाएगा तो ये बाकी के काम सारे यहीं पे हो रहे हैं. तो what is the next process, that one male gamete fertilizes with the egg cell, and egg cell not here, I am just going to rub it again. Yes, one male gamete, suppose ये sorry color change कर रही हूँ, ये male gamete है, this is the one male gamete. One male gamete fertilizes to the ova, or you can say ovum, and forms the zygote, and this process is known as syngamy. Fusion of male and female gamete is known as syngamy. So this is the process of syngamy. Then what is the next process is, suppose in case in this species there are the another male gamete, this another male gamete fuses with the third nucleus. I have just drawn the diagram also, so I will show you with the help of that diagram. These are the diagrams. Where are the diagrams? And give me a moment to find out the diagrams. So these are the, I think this is the diagram for that. Here what happens is that the triple fusion or double fertilization is also shown in the same diagram. If I want to show you with the help of the bigger one, this is the diagram, I think I have drawn it. This is the diagram of the embryo sac. In embryo sac you have seen that on the micropylar end there are three cells. The जो साइड वाली सेल्स हैं दे आर कॉल्ड द सिनर्जिड सेल्स, एंड इन द सेंटर सेल इट इज़ नोट एंड द एग सेल. द मिडिल सेल इज नोन एज द पोलर न्यूक्लियाई, एंड द दीज थ्री सेल्स आर नोन एज द एंटीपोडल सेल. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द एम्ब्रियो सैक. आई हैव नॉट ड्रॉन द इंटेगमेंट लाइक दिस, ये मैंने नहीं ड्रॉ किया ये वाला हिस्सा, तो ये केवल एम्ब्रियो सैक है. Now come to the next step, that means next diagram. Here you can see that I have shown that fusion of the male gamete, because these are the two cells, polar nuclei, and I have drawn the third nucleus. If I remove the ink you can easily see that there are the fusion of three nucleus.
तो what do you mean by fusion of three nucleus? Fusion of three nucleus means two polar nuclei plus one male nuclei. When these fuses, this fusion is known as a triple fusion, and after triple fusion in third step you can see here that अब यहाँ पर इसको हम बोलेंगे PEN, it which is also very important, that means primary endosperm nucleus, and after some times, or you can say after the complete fusion, it will call, you will call प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. तो अगर हम नेट सेल में बात करें तो व्हाट आई जस्ट वांट टू से टू यू इज़ दैट वन मेल गैमीट प्लस वन फीमेल गैमीट इज प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी. सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, एन है सिनगैमी, और यू कैन से सिंपल, यू कैन से फर्टिलाइजेशन. ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, वन मेल गैमीट इज फ्यूजेज विद द एग सेल और फीमेल गैमीट. तो आई हैव रिटन इन द शॉर्ट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट इज नोन एज सिनगैमी, और यू कैन से इज सिंपल फर्टिलाइजेशन. एक तो ये चीज़ हो गई, एक प्रोसेस हुआ. व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स, इफ आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, दैट इज सेकेंड मेल गैमीट fuses with the two polar nuclei. Okay, this after fusion of this what happens, एंडोस्पर्म फॉर्म्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है. तो वही चीज़ आपको मैंने यहाँ बता रही हूँ, और इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन बिकॉज दे आस्क व्हाट इज़ द PEN, दैट मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है. तो इट इज़ वेरी सिंपल कि वन मेल गैमीट्स व्हेन फ्यूजेज विद द पोलर न्यूक्लियाई विच इज़ प्रेजेंट इनटू द सेंटर, it is called as the primary endosperm nucleus, and after the fusion you can call it that प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. क्योंकि तब ये सेंट्रल सेल जो बीच वाली सेल है ट्रिपल हो गई ना, ये 3N हो गया. अगर इसकी प्लॉइडी पूछी जाए तो प्लॉइडी कितनी है, 3N, क्योंकि इसके अंदर क्या है, टू पोलर न्यूक्लियाई हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल न्यूक्लियाई है. तो इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, 3N. तो दैट मीन्स इसके बाद क्या बनेगा, आफ्टर देन इट फॉर्म्स द एंडोस्पर्म. ठीक है, एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म का नाम आप सबने सुना होगा, है ना. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं एंडोस्पर्म्स, अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर लीव्स वगैरह नहीं आ जाते. तो दिस इज़ द ऑल प्रोसेस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन. तो ये भी आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा इजीली, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. नाउ अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड artificial hybridization. Here it is given artificial hybridization, but I am marking the things here for you, but I am going to explain you with the help of diagram which I have drawn for you. This is a hypothetical kind of diagram. ठीक है, ये आपके लिए बनाया so that you can understand it very easily, and it also comes into the practical exams also in spotting. ठीक है, हम लोग ये रख देते हैं तो बच्चों के लिए आसान रहता है. तो what is in it, artificial hybridization? Artificial hybridization is a major approach for the crop improvement programs. You have studied in that previous chapter which is deleted now, है ना वो, लेकिन पढ़ा तो था आपने, तो आपको याद होगा वो. तो in such a crossing experiments what is important thing? Important thing is that the desired pollen grains कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पॉलिनेशन, है ना. उसके अंदर जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उसका मीनिंग आप सबको पता है ना, कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या, डिज़ायर्ड पॉलन गेन एंड डिज़ायर्ड ओवरी के साथ आप अपना मनपसंद प्लांट बनाना चाहते हैं. यू आर नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, यू आर नॉट ऑन द मर्सी ऑफ द नेचर कि भाई जो सा पॉलन गेन आएगा वो फर्टिलाइज करेगा, जो प्लांट बनेगा ओनली ओके वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट. वी आर नॉट इन दैट मूड. वी आर ट्राइंग टू मेक आवर ओन प्लांट ऑन आवर ओन विश, अपनी इच्छा के हिसाब से आप क्या बनाना चाहते हो. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिज़ायर्ड पॉलन गेन्स लेने पड़ते हैं, यूज़ करने पड़ते हैं. फॉर व्हाट प्रोसेस? फॉर द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन. ठीक है, क्योंकि जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है वो आपने सेलेक्ट कर लिया कौन सा फीमेल प्लांट है, एंड आफ्टर देन द प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलन गेन्स ढूंढने पड़ेंगे. तो इफ़ यू वांट टू डिज़ायर्ड पॉलन गेन्स, डिज़ायर्ड प्लांट, डिज़ायर्ड आउटकम, तो आपको इसको किससे बचाना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोटेक्ट द स्टिग्मा फ्रॉम द कंटामिनेशन. आपको कंटामिनेशन से बचाना पड़ेगा पॉलन ग्रेन्स को, अदरवाइज पॉलन ग्रेन्स किसी भी प्लांट के आके गिर गए इस ओवरी पर तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो तो आप चाहते नहीं थे. तो इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट द स्टिग्मा फ्रॉम the contamination, you can
गो बाय फॉर द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोग्राम सेलेक्ट करते हो। तो व्हाट हैपन्स इन दिस प्रोसेस, स्टेप वाइज आई हैव शोन यू इन अ वेरी यू कैन से ईजी वे। दिस इज़ द फीमेल प्लांट। समटाइम्स फीमेल प्लांट मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, बाइसेक्सुअल प्लांट में बोल सकती हूँ। बाइसेक्सुअल प्लांट कैरीज बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स है ना। तो सपोज बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इसके अंदर बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट, बोथ मीन्स मेल एंथर्स एंड फीमेल ओवरी इज प्रेजेंट। नाउ व्हाट हैपन्स इज, बिकॉज यू डू नॉट वांट दैट pollen grain of this flower शेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ दिस प्लांट, है ना। आप ये नहीं चाहते कि इसी का pollen grain इसी पर निकल के गिर जाए, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फिर से वही सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा एंड यू डू नॉट वांट इट। क्यों? क्योंकि फिर आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, है ना। यू वांट अ डिफरेंट pollen grain, डिजायर्ड pollen grain, अच्छा pollen grain कोई आप चाहते हो कि इस पर आप डालो। तो व्हाट यू विल डू, यू विल रिमूव दीज एंथर्स। इन एंथर्स को आपको रिमूव करना पड़ेगा बाय द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड ईमैस्कुलेशन। एंथर के रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं, ईमैस्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिमूवल ऑफ द एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर विच इज़ कॉल्ड ईमैस्कुलेशन, ठीक है। ईमैस्कुलेटेड फ्लावर को अब हम क्या करेंगे, ये मैंने ईमैस्कुलेट करके आपको दिखाया है। देखो यहाँ पर नहीं है एंथर्स कोई भी, एंड दीज आर द रिमूव्ड एंथर्स एंड देन वी कवर्ड दिस फीमेल पार्ट, है ना। एंथर तो आपने रिमूव कर दिए, अभी ये इमेच्योर है, मेच्योर नहीं है पूरा, तो इसको आप कवर कर देंगे। आइदर यू कैन कवर इट विद अ स्पेशल काइंड ऑफ पॉलीथीन टाइप ऑफ थिंग और बटर पेपर, किसी से भी आप इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर अच्छे से टाई अप कर देंगे सो दैट कोई दूसरा pollen grain इस पर शेड ना हो सके। आफ्टर सम टाइम्स व्हेन यू फाइंड दैट इट बिकम मेच्योर, कि ये जो फीमेल पार्ट है ये मेच्योर हो गया, देन डिजायर्ड pollen grain, जो से भी आपको पसंद के pollen grains हैं वो आप इस पर डस्ट कर दोगे, वो इस पर आप डाल देंगे। एंड अगेन यू कवर इट विद द बटर पेपर। इसको फिर से आप बटर पेपर से कवर कर दें या पॉलीथीन से कवर कर दें, किसी से भी कवर कर दें, सो दैट अननेसेसरी pollen grain विल नॉट कम ओवर हेयर, है ना, दूसरे ना आ सकें। क्योंकि अब एक बार आपने तो इसको पॉलिनेट करा दिया, फर्टिलाइज अब ये हो गया, तो हम नहीं चाहते अनडिज़ायरेबल pollen grains आए, तो देन वी कवर इट एंड ये फीमेल पार्ट डेवलप हो जाएगा फ्रूट के अंदर, देन यू रिमूव इट। हियर आई हैव शोन द टैगिंग। एक्चुअली यहाँ पर हमें छोटा सा टैग भी लगा देते हैं टू रिमाइंड अवर सेल्फ कि यहाँ पर किस डेट में कौन से प्लांट का pollen grain हमने शेड किया था, सो दैट बिकॉज दीज आर द एक्सपेरिमेंटल थिंग्स ना, आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं टैगिंग। टैग को लगाने को टैगिंग, बैग को ऐसे कवर करने को हम बोलते हैं बैगिंग। दीज आर द टर्म्स विच फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो यू यूज दीज पर्टिकुलर टर्म्स लाइक रिमूवल ऑफ एंथर, यू कैन कॉल इट इमैस्कुलेशन, है ना। कवरिंग इट इज कॉल्ड बैगिंग, अटैचिंग द टैग ऑन इट तो यू कॉल टैगिंग। एंड टैगिंग पे हम मेंशन कर देते हैं कि किस प्लांट के pollen grains हमने इस पर डाले और किस डेट में हमने डाले। तो रीबैगिंग आपने कर दी और उसके बाद में यहाँ पर जब फ्लावर बनना स्टार्ट हो गया, देन यू रिमूव द पॉलीथीन बैग एंड ये नॉर्मल तरीके से फ्लावर जो है डेवलप हो जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल insemination। तो आर्टिफिशियल insemination नहीं, hybridization, artificial hybridization। So student, this is all for today. In next lecture we will continue with the chapter with the post fertilization changes in the flowering plants. Thank you all.